हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरी सर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और आप जून अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जून 2023 अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, देन यू मस्ट बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। तो मैंने इसीलिए ही जो अभी रिसेंट कंडक्ट हुआ था यूजीसी नेट एग्ज़ाम इन मंथ ऑफ मार्च 2023, तो मैंने इसी का ही क्वेश्चन पेपर डाल रखा है इस वीडियो में। Do not forget to watch this video till the end क्योंकि मैंने with explanation and solution भी दिया गया, right? And this is the first thing. Second thing is that if you are looking for course, if you are looking for guidance with respect to UGC NET exam, then you can check out three things what Research Academy is providing. एक है इनका फुल फ्लेजेड कोर्स है, रेगुलर कोर्स है फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन क्लासेस भी हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड व्हाट दे आर ऑफरिंग आर द क्रैश कोर्सेज, राइट? क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। थर्ड इज द मॉक टेस्ट। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, राइट? सो यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। मैंने तीनों ही चीज़ का यूआरएल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक देम आउट। And lastly, if you want to know any other information with respect to these three things, you can contact on the number which I have provided under the description box, right? Now, do watch this video till the end. So we are going to start with solving March 2023 UGC NET paper. So the first question is, in which country the Supreme Court has declared that independence of judiciary is a part of basic feature of constitution? Any guesses? Ma'am, India, if I'm not wrong. Yes, it's India. And can you identify the case as well? Ma'am, I can't recall the case as of now, but it's India. Yes, it's India. And the name of the case is SP Gupta case. All right. Now, the next one. Regarding freedom of information or right to information, which among the following countries have passed an enactment? Okay, any guesses? मैम इंडिया का तो है, बट हाँ यूके एंड यूएस का भी शायद से है। हाँ, इंडिया है, यूएस से भी है और यूके भी है। यूके का जो आरटीआई एक्ट है उसका नाम है, आई मीन आरटीआई जो है, इट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये 2000 का केस है, अरे 2000 का एक्ट है। और यूएसए का भी है, उसका भी नाम यही है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। सो ऑल दीज थ्री कंट्रीज आर हैविंग द इनैक्टमेंट ऑफ आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन। The concept of rule of law contains three principles. These three principles in an organized form were propounded by whom? एविडाइसी। Yes, AV Dicey. कौन से तीन principles हैं? Supremacy of law, equality before law, and predominance of legal spirit. All right. यस मैम। चलो, question number 4. In context of center-state relationship, the residuary power rests with the center. In which of the following countries? It's India and Canada. इंडिया एंड कनाडा, यस मैम। Chalo, good. Question number 5. Separation of powers and distribution of powers are the same concept or different concept? मैम, आई गेस दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हाँ, because देखो जो separation of power होता है, it is basically the distribution of jurisdiction among government organs. और वही अगर मैं distribution of power की बात करूँ, it is like how the authority is distributed at different levels of government. So yes, the correct option is option number 2. They are the different concepts. Question number 6. The institution of ombudsman was first developed in? स्वीडन। Obviously, बहुत ही common question है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है? Next question is your question number 7. That in which of the following cases the Supreme Court has held that administration of public authority can't be invalidated merely for not recording reasons when it had no duty to do so? It's this case, NHAI versus हाँ मधुकर कुमार। देखो इस बार काफी चेंज हुआ, काफी क्या थोड़ा सा ही चेंज था कि यूजीसी एग्जाम जो है आपका वो हमेशा लैंडमार्क ही केसेस पूछता था। इस बार एज यू कैन सी रीसेंट केसेस भी उसने पूछे, ठीक है? तो आप
प्लीज नोटिफाई कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए कि आपको रीसेंट केस लॉज भी देख के जानी है, ठीक है? Yes. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, that which of the following articles of the constitution provide, direct question again, that no discussion shall take place in the legislature of a state with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or of a high court in the discharge of his duties. So answer is article 121. ठीक है, Yes, उसका ma'am. हेडिंग है आपका, सॉरी इट्स नॉट 121, इट्स आर्टिकल 211, ऑप्शन नंबर 3 है। इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following section of IPC has been struck down by the Supreme Court in Justice Shine versus Union of India? Very simple question. हाँ जी, Ma'am, 377. you sure? Ma'am, it's either 377 or 497. हाँ तो you have to confirm ना, there is जमीन Yes, ma'am. आसमान का फर्क है दोनों 497. के Yes, sections. ma'am. Yes, ma'am. It's 497, adultery हुई थी ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. adultery was decriminalized in this very case. Yes, ma'am. I had read this case, but I couldn't recall. Yes. Okay, चलो. Next question, question number 10. Which Constitutional Amendment Act added Article 279A of the Constitution to the Constitution? It's 101st Constitution Amendment Act. ठीक है, और ये 2016 में हुआ था ऐड, ठीक है, 2000 Yes. हाँ 16 में ऐड हुआ था, एंड इसका नाम है एज अ जीएसटी काउंसिल, ये ऐसे ही आएगा, ओके, जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following constitution amendment to the Constitution of India inserted Article 246A, which deals with the special provisions with respect to GST? हाँ जी, Ma'am, it was the 101st Amendment. हाँ वही 2016. अमेंडमेंट जो अभी हमने डिस्कस की, ठीक है, 101st अमेंडमेंट ही ऐड हुआ था, और इसका ईयर भी याद रखिए 2016, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, next question is, which of the following articles of the Constitution of India deals with the socially and educationally backward classes? Yes, it's article 342A, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। आप ये वाला आर्टिकल देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज केस लॉ पे है, in which of the following cases Supreme Court has held that mother can be a natural guardian in certain circumstances even in the presence of father? Any guesses? Ma'am, was it Veena Sharma versus Rakesh Sharma? नहीं, वीना शर्मा राकेश शर्मा आपका मेंटेनेंस पे है, इट्स गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई, ठीक है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है फादर की डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, बट मदर, ये देखो यहाँ पे मदर का भी शी कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल गार्डियन। और कौन सा सेक्शन यहाँ पे डिस्कस हुआ था? इट वाज सेक्शन, चलो इट वाज सेक्शन, जस्ट राइट इट डाउन, इट वाज सेक्शन 6 ऑफ हिंदू हिंदू एंड एडॉप्शन, अरे हिंदू हाँ. एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हाँ एक्ट, ठीक है, ये सेक्शन 6 के बारे में था, ठीक है, ऑलराइट। Yes, ma'am. चलो next case, I mean next question, question number 14. Who has divided the sources of law into two classes, formal sources and material sources? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, बताओ। सालमंड, Yes, ma'am. Salman. सालमंड ने ही दोनों कैटेगराइज किया था। Question number 15. Who among the following is considered the main exponent of historical school of law? Ma'am, it was Savigny. Yes, okay, it was Savigny. Now, question number 16. Which of the following is considered law within the Austinian theory of law? बताओ। Ma'am, one. Yes, as always.
Question number 17. Law and Modern Mind is authored by. देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, पब्लिकेशंस भी काफी पूछते हैं ये लोग. Ma'am, I don't know this one. Okay, no problem. It's basically option number 2, which is Jeremy Frank. तो इन्होंने इस बुक में ये आर्ग्यू किया था, और ये 1930 में ये बुक आई थी. इन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो जुडिशियल डिसीजंस है, they were more influenced by the psychological factors than by the objective legal premises. Okay. This was your question. Question number 18. Who among the following jurists doesn't belong to the sociological approach to law? Sociological school का कौन नहीं है इसमें से? Main. Very good. कौन से स्कूल का है मेन? Ma'am, if I'm not wrong, he was from historical school. Yes, very good. Question number 19. The movement of progressive societies, ये भी देखो काफी पूछा जाता है. Progressive societies has hitherto been a movement from status to contract. The most famous generalization is given by whom? Who? Ma'am, is it okay, Henry, man? Okay, ma'am. Yes. ठीक है. इन्होंने ही बताया था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस पॉइंट. ठीक है. Now question number 20. Which of the following is considered to be the condition of penal liability? UGC remedium? और oh yeah, sorry ma'am, वो वाला देखी ही नहीं थी, sorry. Yes ma'am. Question, it's option number 4. Yes ma'am, yes ma'am. इसका मतलब क्या होता है? That an act will not give rise to criminal liability unless Until and it's unless done there with is a a guilty mind. guilty mind. Okay, you need two things, mens rea and actus reus, Actus to reus, constitute a penal liability. बाकी सब tort के options है. ठीक है, ध्यान देना. Yes ma'am, yes ma'am. 21. Ownership as a right over a determinate thing, indefinite in the point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration. This definition of ownership is given by whom? Ma'am, Austin. it's Austin, yes ma'am. Yeah, it's Austin. Question number 22. I promise to pay B rupees 50,000 and to deliver him my black horse on 1st March next. ये क्या है? ये promissory note है कि bills of exchange है या promissory note नहीं है? What will be your answer? It's not a promissory Not a note. promissory note, yes ma'am. हाँ, क्योंकि देखो promissory note में सिर्फ unconditional undertaking होती है, प्लस ये होता है कि आप कितना पे करोगे. I mean, कितना मतलब certain amount of money will be there. ये सब चीजें नहीं होंगी, right? और जो भी हैं बाकी जो conditions हैं. So hence your answer is option number 4. Next question is the case by Tahira versus Ali Hussain Fidali, AIR 1979, is related with the case of. Is actually maintenance. Yes ma'am. ठीक है. तो इसमें ये था, बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि that every divorced woman is eligible for maintenance and the dissolution of marriage wouldn't make any difference unless woman is remarried. क्या था? हाँ, by Tahira case. So चलो next question, question number 24. That in which of the following cases section 9 of HMA has been declared unconstitutional? ये बहुत बार पूछा गया है केस. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है ना, तो आपने ये केस जरूर देखा होगा. टी सरिता केस, जिसमें कि कोर्ट ने कह दिया था कि जो सेक्शन 9 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, it was barbaric, it was ancient, and it was constitutionally inept, and hence it was declared to be void and null. So it was a case of T Sarita versus T Subaiya. Yes ma'am. Next question is, the sub-agent is responsible for his acts to the agent but not to the principal, except in the case of. Ma'am, it should be option 4. Yes. Option 3. Yes. इसके लिए आप सेक्शन 192 पढ़िएगा. Yes ma'am. देखो मैं फिर से लिखूंगी, अजीब हो जाएगा. ठीक है. So Yes it's ma'am, I will go to section. that section. हाँ, section 192 of Indian Contract Act.
Yes, ma'am. ठीक I है, will go for the section. और उसका आप हाँ जी वही देख about to write ICA. ठीक है, और बस I'm going to end. I hope you have got the idea. Yes, One ma'am. section manager, I see. Question number 26. Who among the following judges of the Supreme Court has authored the judgment in the leading case Seema versus Ashwini Kumar? ये भी काफी बार आ चुका है यूजीसी एग्जाम। यहाँ पे तो खैर पूछ रहा है कि किस जस्टिस ने ऑथर किया था इस केस, एंड दिस केस इज रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये है इसका ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस अरिजीत प्रसाद। Arijit Pasayat. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cases is not related to the tort of negligence? Ma'am, it is option 3. You sure? वो आपने देखा नहीं है तो मार कह रहे हो? Zoology was Stevenson तो था मैम उनका। Gloucester Grammar School cases मैम। Okay, tort of negligence. Sorry मैम, खाली tort देखा तो इसलिए। Sorry मैम। It is related to the damnum sine injuria, मतलब damage Yes without मैम। Yes मैम। damage मैम without मैंने injury. negligence word ही नहीं देखा था। Actually फोन से देख रही हूँ, फोन हैंग कर रहा है तो ठीक से दिख भी नहीं रहा। Okay, दिखेगा आराम से देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 28. In which of the following cases it was held that contract to take and supply photographs is a contract of sale of goods? इसका मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है न्यूमैन वर्सेस लिपमैन। इसमें ये बोला गया था इस केस में कि क्या डिफरेंस होता है सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क के बीच में। देखो सेल में आप क्या करते हो, आप ट्रांसफर कर देते हो फुल ओनरशिप विद पोजेशन, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क में आप क्या करते हो, आप सामने वाले बंदे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एंड Yes मैम। इसमें हाँ सर्विस प्रोवाइड करो जिसमें आपकी स्किल लगती है, और कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क में आप कोई भी गुड्स डिलीवर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ये देखो जो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट टू टेक एंड सप्लाई फोटोग्राफ्स, तो ये आपका सेल नहीं है, ये आपका ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क है। ये न्यूमैन वर्सेस लिपमैन में हुआ था, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. In which of the following cases the Privy Council has held that doctrine of acknowledgement is a part of the substantial Muslim law inheritance and not a rule of evidence? So it is a case of Habibur Rahman versus Altaf. Yes मैम। हाँ, ये समझो पहले एक्नॉलेजमेंट होता क्या है। एक्नॉलेजमेंट को हम लोग इकरार भी बोलते हैं। So basically it establishes the paternity of a child whose paternity is previously unestablished or not proved, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द लीडिंग केस एशबी वर्सेस वाइट वाज डिसाइडेड बाय whom? Lord Holt. Yes मैम। Yes, okay. Now question number 31. Which of the following is not necessary for constituting trespass under law of torts? Any guesses? They could मैम एंटरिंग इनटू लैंड तो होना चाहिए, रिमेनिंग देयर भी होना चाहिए, एंड एन एक्ट अफेक्टिंग द सोल पोजेशन, बट अनलॉफुल इंटेंशन होगा ये जरूरी नहीं है मैम। अनलॉफुल इंटेंशन आप नहीं चेक करते ट्रेसपास में। यस एंटरिंग मैम। लैंड होना चाहिए, स्टैंडिंग या वॉकिंग अपॉन सच लैंड है, एंड प्लेसिंग ऑब्जेक्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ये सब आते हैं ट्रेसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32. कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इज A system of law in various jurisdictions especially recognized by a method of studying law. Yes ma'am. ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में आप डिफरेंट जुरिडिक्शन का लॉ पढ़ते हो। कंपैरेटिव लॉ में और क्या करते हो, यही करते हो ना, Yes ma'am. यूएस यूके इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी करते हो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 33. We the people words are found in the constitution of इंडिया ओनली, मुझे इंडिया का पता है, और कोई कंट्री का नहीं इंडिया ने ये पता कहाँ से बोरो किया है पता है? मैम। इज इट यहाँ फ्रॉम से बोरो यूएसए? किया है। यस मैम।
It's option number 1. Opening phrases हैं ये, we the people, US का भी. Yes, ma'am. Next question. In estimating the loss or damage arising from breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of contract. देखो, breach of contract आपका section 73 and 74 में दिया गया है, ठीक है, of Indian Contract Act. 73 आपके unliquidated damages की बात करता है, वहीं जो section 74 है वो liquidated damages की बात करता है, right? Yes, तो ma'am. अब बताओ कि क्या कहते हैं, अगर लॉस या डैमेज आप कैलकुलेट कर रहे हो तो लाइक कैसे जो मतलब लाइक नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है राइट फॉर एस्टिमेटिंग लॉस एंड डैमेज, क्या वो उसको आप कैलकुलेट करोगे कि नहीं करोगे? इट मस्ट बी टेकन इन account. Must be taken. Must be. Option number 3 is the correct. Now, question 35. Point out incorrect response. The purpose of IT Act 2000 as set out in the preamble. देखो ये preamble से क्वेश्चन पूछ लिया है किसके, IT Act पे. अब देखते हैं क्या है. टू प्रोवाइड, अब आपने पढ़ा होगा तब आपको आइडिया लगेगा, वरना कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, ठीक है. देखो हाँ, to provide legal recognition for transaction Ma'am, carried out if by I'm means of. not wrong, it should be option 3 क्योंकि फर्स्ट वाला तो होगा, सही होगा मैम. हाँ. सेकेंड वाला भी सही है एंड ऑप्शन 4 भी सही है क्योंकि इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में चेंजेस हुआ है मैम. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है. तो इट्स ऑप्शन नंबर 3 विच इज योर करेक्ट. नाउ अब आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है क्वेश्चन नंबर 35. इसके अकॉर्डिंग फॉल्ट का मतलब क्या होता है? इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉल्ट मीन्स, व्हाट इज द मैम मीनिंग ऑफ ऑप्शन फॉल्ट? ए. अच्छा, आई थिंक सो, आई एम इट्स नॉट. रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट. यस मैम. ये आपके डेफिनेशन का पार्ट है, डेफिनेशन भी जरूर देख के जाना. ये क्लॉज 2 सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 5 में दिया गया, ठीक है, फॉल्ट का डेफिनेशन. यस मैम. Next question. When a promissory note, bill of exchange, or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be. जब आप promissory note, bill of exchange या चेक किसी को ट्रांसफर करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप नेगोशिएट कर. That Yes, is why तो इसको negotiable instruments बोले जाते हैं. So option 1 is the correct answer. Now 38 है आपका. When a person to whom proposal is made signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted. ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है. A proposal when accepted it it's a promise, becomes. ma'am. Yes. A promise. कौन से सेक्शन में दिया गया है? मैम सेक्शन 2 हाँ. सेक्शन आई गेस सी B. था. बी. यस मैम. यस मैम. चलो next is your question number 39. Where an option to purchase land was exercisable by notice, in which of the following cases it was held that mere posting of notice which was never delivered wasn't a valid exercise of the option? That I did. कोई आइडिया है इसका? नो मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोस केसेस. कोई बात नहीं. एक second. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है आपका हॉलवे सिक्योरिटीज वर्सेस भारत. इसका फैक्ट ये था कि क्या कहते हैं, यस एक हाँ, यहाँ पे जो डिपेंडेंट है हमारा हर्ष, उससे उसने अपने प्रॉपर्टी बेचनी थी और उसने कहा था कि किसी को भी अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, परचेज करनी है, तो वो मुझे नोटिस में लिख के देगा विद इन 6 months. ठीक है. तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ है विच इज हॉलवे सिक्योरिटीज, उसने क्या किया था, उसने नोटिस ऑफ कोर्स उसने रिस्पॉन्ड किया था एंड उसने पोस्ट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो काफी पुराना केस है. उसने पोस्ट किया था उस टाइम.
लेकिन हुआ क्या था कि जो उसका नोटिस था, जो उसका रिस्पॉन्स था, वो खो गया था, इट वॉज लॉस्ट इन ट्रांसिट। तो अगर आप कम्युनिकेशन देखोगे, ठीक है, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 4 आप देखोगे, व्हेन द कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट, तो एज अगेंस्ट अ प्रपोजल वो तब कंप्लीट होता है जब क्या कहते हैं, जो एक्सेप्टर है उसके हाथ से निकल गया हो एंड इट एंटर्स इनटू अ पोस्टल सिस्टम। तो इस केस में क्या हुआ था, जो यहाँ पे हॉलवेल सिक्योरिटी से उसने कहा कि नहीं, मेरे रूट से तो निकल गया था, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द वैलिड कम्युनिकेशन, आई मीन इट विल बी कंसिडर्ड दैट येस कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं। वाई? बिकॉज जो हक्स था उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि जो नोटिस है उसको 6 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए, तभी परचेज, तभी प्रॉपर्टी वैलिड मानी जाए, तभी वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा, उसी को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यही केस हुआ था, ठीक है। So Yes, basically it ma'am. is related to the communication of acceptance and proposal. Next is your section, question number 40. Filling the blanks with the exact provision of law, it is dash whether IPC is or is not in force in the place where the coercion is employed. बताओ ये कौन? Immaterial. हाँ जी, मैम अगर हम लाइक जूरिस्डिक्शन वाला सेक्शंस देखें ये तो कहाँ का पूछा है, आप ये बताओ मेरे को, ये कौन से एक्ट से उठाया गया है क्वेश्चन? इंडियन पिनल कोड, नहीं, it is dash whether the Indian penal code is not in force in the place where the coercion is इसका ना मेरे को बता दो। आप सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना, ओके मैम, हाँ सॉरी, मेरे को क्योंकि वही लगा। कर्जन वही, हाँ वहां आता है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन आप देखोगे, एक्सप्लेनेशन कट कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया इन लोगों यस मैम, यस मैम। ने, ठीक है। चल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर क्राइम इज कवर्ड एंड पनिशेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आई? ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस है, इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन किस किस ऑफेंस में साइबर क्राइम आएगा। तो देखो, जो सेक्शन 354, अरे हाँ 354C है, ये क्या होता है? वॉयरिज्म। वॉयरिज्म। वॉयरिज्म में क्या करते हैं? इमेज कैप्चर करते हाँ यस मैम। हैं, हाँ। और 354D में क्या करते हैं हम लोग? टॉकिंग। स्टॉकिंग। स्टॉकिंग में आप क्या कर सकते हो, अगर आप सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पे दिया है कि इफ यू आर, इवन इफ यू आर मॉनिटरिंग वुमेन थ्रू इंटरनेट और मेल एक्सेट्रा, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉकिंग। तो यही दो आपके सेक्शंस हैं, सेक्शन 354C एंड D, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है। यस मैम। क्योंकि वॉयरिज्म भी आप जहाँ पे इमेज कैप्चर कर रहे हो, तो वहां पे भी आप साइबर का आ जाता है एलिमेंट, ठीक है ना। ये देखा आपने, ये कैसा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, इट्स एग्जैक्टली नॉट अ मैम। डायरेक्ट हाँ क्वेश्चन। यस मैम। चलो, क्वेश्चन नंबर 42. The Supreme Court of India and State of Bihar versus Kameshwar Singh laid down certain tests for discovering whether any particular act constitute a colorable legislation. ठीक है, all right. Now you have to choose the appropriate statement out of the given options. हाँ जी, any idea? मैम जस्ट अ मिनट, ऑप्शंस देख रही हूँ। Colorable legislation क्या होता है? मैम ऑप्शन ए तो सही लग रहा है, देन द कोर्ट मस्ट लुक इनटू सब्सटेंस ऑफ लॉ, नॉट its form or the level which the legislature given at the court must look. The legislative process and the court must read all this information. ऑप्शन ए सही है, तो कोर्ट में। Colorable legislation का मतलब क्या होता है? मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मैम इट्स जस्ट दैट समझ में तो आता है, लेकिन कैसे बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा।
अरे, the best line to describe culpable legislation is what can't be done directly cannot also be Yes, done ma'am. indirectly. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. okay. So अगर आप सारे options देखोगे ना, you will find option number 2 as the best answer. Okay, B, C, that and court must look into the substance of law and not to its form or label which the legislature has given it. The court must look at the object as well as the effect of the law. मैम And the मुझे third, ऑप्शन डी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा वो वाला कंफ्यूज थी. अच्छा अच्छा, okay, but option D है, B C D is the correct option. Sure, let's move to the other question. Question number 43. A resolution approving the proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution for the first time or on a subsequent occasion may be passed by either House of Parliament only by कौन सा यहाँ पे भी देखो स्टेटमेंट दिया गया है and we have to choose the correct answer. It's basically option number 3. अगर आप A and B. हाँ, इसका क्लॉज 6 पढ़ना, ठीक है, इसका क्लॉज 6 पढ़ना तो फिर आपको समझ में आएगा. It's A and B, that the majority of total membership of that house, majority of not less than 2/3 of the members of that house present and vote. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एज यू कैन सी ये हीबा से रिलेटेड क्वेश्चन है. हीबा का मतलब क्या होता है? गिफ्ट होता है. और इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? डिक्लेरेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन होता है. ठीक है, जो मुस्लिम लॉ में दिया गया है. अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का. इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. अच्छा ठीक. इन गेसेस मैम ए मुझे लग रहा है सही होगा. इसका आंसर है. मैम इज इट नेसेसरी दैट गिफ्ट में यस मैम हाँ यस मैम हाँ ई वाला भी सही होगा. ए एंड ई ओनली आई गेस. ए बी सी. ए बी गिफ्ट एलिमेंट पॉसिबली विदाउट ओके यस मैम. इट्स ए बी एंड सी. आपके स्टूडेंट पोर्टल पे भी क्वेश्चन पेपर शायद अपलोड हो गया है, तो वहां पे भी चेक कर लो. ओके मैम. बाकी क्लास तो रहेगी. क्वेश्चन नंबर 45. Arrange the following sections of Patent Act in a chronological order. ना, chronologically. मैम ये तो अभी याद नहीं है कब पढ़ी थी जाके. चलो बताते हैं. तो देखो, कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स आपका सेक्शन 73 में दिया है. टर्म ऑफ पेटेंट आपका दिया गया है सेक्शन 53 में. टर्म ऑफ पेटेंट कितना होता है, कितने साल का होता है? मैम इज इट फॉर 20 याद नहीं आ रहा. इट्स फॉर 20 years. यस मैम 20 years. 20 years तक जो इन्वेंटर होता है वो अपना मोनोपोली एंजॉय करता है. उसके बाद या तो वो उसको वापस से क्या कहते हैं, रीफाइल करेगा उसे, या तो क्या कहते हैं, या तो वो पब्लिक डोमेन में हो जाए. ठीक है. अब जैसे जन औषधि आपने सुना होगा, वहां पे मेडिसिन मिलती है. ठीक है, जो जेनरिक मेडिसिन मिलती है वो इतनी चीप क्यों मिलती है? क्योंकि उसका पेटेंट हट चुका होता है. ठीक है, तो वो दवाइयाँ गलत नहीं है, बहुत लोग के ये परसेप्शन होते हैं. सो बेसिकली दैट इज द बेस्ट एग्जांपल लाइक हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू पेटेंट. और ये देखो, मैं सेक्शन नंबर्स लिख रही हूँ. ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे? क्या आपको सेक्शन नंबर याद रखना जरूरी है? ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क आ जाता है बिकॉज इतने ढेर सारे सेक्शंस है और एट द एंड मोमेंट पे हम लोग कैसे करें. सो इट्स बेटर कि आप वेयर इंडेक्स देख लो. ठीक है,
Yes, एटलीस्ट ma'am. अगर आप एक दो यहाँ पे ऑप्शन भी पकड़ लोगे ना कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर ऑप्शन आज। ठीक है, अगर आपको पता है कि टर्म ऑफ पेटेंट स्टार्टिंग में आता है, बाद में कंट्रोलर वाले चीजें आती हैं, तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको सही रहेगा। और ये आइडिया लगेगा आपको बेयर एक्ट का इंडेक्स। ठीक है, और देखो बेयर एक्ट भी पढ़ रहे हो आप, तो जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कुछ टर्म ऑफ पेटेंट इज एन इम्पोर्टेंट। अगर आप पेटेंट पढ़ रहे हो तो आपको टर्म पता होना चाहिए, इसका इंफ्रिंजमेंट कैसे होता है, और कौन कौन सी चीजें हैं, लाइक व्हाट आर द इन्वेंशंस टू व्हिच पेटेंट्स आर ग्रांटेड। सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 4 हो गया, ये सब थोड़ी बेसिक की चीजें हैं, तो ये सब पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. सो बेयर एक्ट इज अ मस्ट। अभी और भी आगे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बेयर एक्ट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, स्पेशली ये जो माइनर एक्ट्स दिए गए हैं। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, सो यस, सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अब आप अरेंज कर लो, इट विल बी, ठीक है, पहले टर्म ऑफ पेटेंट आएगा, फिर बाकी बाद में सेक्शन। ठीक है, Yes, ma'am. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Just a minute, just a minute. एक मिनट, हाँ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो, सेक्शन 46, तो पहले मैं इसको हटा दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, दैट विच ऑफ द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो देखो, ये जो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस रविंद्रनाथ दलाई केस है, ये प्राइवेट डिफेंस का केस है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का केस है ये। ठीक है, बाद में देखो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये इन्वायरमेंट लॉ का केस है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ठीक है, जो मैम, सेकंड अल्ट्रा ऑप्शन, वाला भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, और एमसी में था तो है ही। एमसी मेहता तो रहता ही है, वही याद ही रहता था हमें भी। यस मैम। तो देखो, जो अलमित्रा वाला केस है, इट वाज रिलेटेड टू द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड एंड वेस्ट। ठीक है, यस ये मैम। दिल्ली का केस था बेसिकली। एंड फिर एमसी मेहता आपको पता ही है, एनवायरमेंट केस है ही। और काशी राम का जो केस है, ये भी आपका प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, सो यही 3 केसेस हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड हैं। सो ऑप्शन बी सी डी will be your correct answer, which is option number 4. अब आते हैं हम लोग 47 पे। A person shall not be a member of state board constituted under Air Act. ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या कहते हैं, ऑप्शन सॉरी सेक्शन 8। सेक्शन 8 में आपका दिया गया है अबाउट सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ एयर एक्ट अगर आप देखोगे, देन यू आर गोइंग टू फाइंड कि हाँ कि जो मेंबर है उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, या हु कैन नॉट बी अ मेंबर। सो अकॉर्डिंग टू इट, such person is or at the time has been adjudged insolvent। ठीक है, अनसाउंड माइंड हाँ, अनसाउंड माइंड, एंड मोस्ट कन्विक्टेड, लाइकली मोरल हाँ, टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड। यस तो मैम। ठीक है, और ऑप्शन डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट्स ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी ई। ठीक, चलो, next question is question number 48. Who among the following persons have been members of MG? So Justice सूर्य नारायण नायडू थे, दीपक मिश्रा नहीं थे। ठीक है, एंड आपके जस्टिस सी वेंकट रामना भी थे, एंड जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे,
नहीं थे। ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा नहीं थे, ना ही दीपक मिश्रा थे, और प्रताप कुमार रे थे। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देख, करंट अफेयर्स नहीं बट यस जो स्टैटिक अफेयर है आपका रिस्पेक्ट टू एनजीटी, और एनजीटी का ही मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, तो इसके मेंबर्स देख लेना आप। इसके साथ साथ मैं तो कहूँगी आप आईसीजे के भी देख लेना कि कौन कौन रह चुके हैं, उसके भी Yes, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, so accordingly A, C, E is your correct answer, which is option number 2. Now the next question, according to Professor H.L.A. Hart, H.L.A. Hart कौन सी स्कूल का था? Yes, H.L.A. Hart एनालिटिकल स्कूल का था। ठीक है, analytical school, yes, ma'am. हाँ उन्होंने ही प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स दिए हैं। राइट नाउ तो आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट ही है। The idea of obligation is at the core of a rule. Yes, and this thing, the primary rules acquires the unity of system through their union with secondary rules. Law is the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules. ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, so option A, B and D is your correct answer, which is option number 3 is the correct answer. चलो next question. Next question is your 50. Which of the following are correct in case of contract of bail? ठीक है, बेलमेंट क्या होता है? Ma'am, we like deliver the property for a particular reason, and वो reason complete होने के बाद like we get back the property, right? Yes, yes. चलो चलो देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस में। The person who delivers the goods is called bailee. He is known as bailer. Yes, so this is not correct. If the bailee doesn't act, which is inconsistent with the conditions of bailment, the contract is void. Yes. बताओ सही है कि गलत है? Ma'am, contract becomes void तो नहीं लग रहा voidable होगा. हाँ, void नहीं होता है। A gratuitous bailment is terminated by death either of a bailer or bailee. ठीक है, the bailee is bound to take care of the goods bail. That is true. ठीक है, bailee has no general lien. General lien क्या होता है? ये आप And किसी lien as in अब रख लेगा, अगर उसे पेमेंट नहीं किया जाएगा तो वो रख yes. सकता है प्रॉपर्टी. तो जनरल लियन देखो, पर्टिकुलर लियन हो सकता है लेकिन जनरल लियन नहीं हो सकता। जनरल लियन में कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ई भी आपका गलत है। सो अकॉर्डिंगली सी एंड डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट इज योर 51. Every prospectus issued by or on behalf of a public company shall state the following information. जल्दी से बताओ प्रोस्पेक्टस होता क्या है? मैम, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी रहेगा, हाँ डिटेल्स अबाउट अंडरराइटिंग ऑफ द इशू, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स रहेगा, हाँ एंड डिटेल्स अबाउट ट्रस्टीज एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एज इन मुझे समझ में नहीं आ रहा. सो कोलेटरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. मैम, फर्स्ट इन तो रहेगा ही रहेगा. हाँ, फर्स्ट एंड बी ही रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। नहीं रहेगा. यस मैम. Yes. होता क्या है प्रोस्पेक्टस? मैम, प्रोस्पेक्टिव एज एडवर्टीजमेंट इन. होता है ना यस जिसके मैम. थ्रू पब्लिक यस मैम. कंपनी इज गोइंग टू रेज द कैपिटल। चलो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following are incorrect? Are correct? A company may issue debentures with option to convert them. देखो ये डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? आपकी डेट सिक्योरिटीज होती है। इट्स अ काइंड ऑफ लोन जिसपे आपको इंटरेस्ट देना। ठीक है, नाउ so company may issue debentures with option to convert them to shares either wholly or partly at the time of redemption. Yes, this is the correct answer. Such issue has to be approved by the special resolution. बिल्कुल सही है। The debenture with voting rights can be issued नहीं। Voting rights सिर्फ shares के पास होती है, वो भी equity shares के पास, ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास। Secured debentures can't be issued. This is also wrong. ठीक है, secured debentures भी issue किए जाते हैं। The debenture trustee has to take steps to protect the interest of debentures holder. Yes. So A, B, and E is your correct answer, which is option number 2. Okay. यस मैम. Now, question number 53. Which of the following are correct? Fraud means and includes. ठीक है,
फ्रॉड आपका कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 17 ऑफ इंडियन 17. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, पहला वाला देखते हैं हम लोग। सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू और वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। वो वाला नहीं, सही है। ये नहीं। ओके, ये सॉरी मैम। हाँ मैम, पैसिव कंसीलमेंट वाला तो होगा। पैसिव कंसीलमेंट होगा कि एक्टिव कंसीलमेंट होता है? पैसिव या एक्टिव? ओ सॉरी मैम, एक्टिव कंसीलमेंट, यस मैम। हाँ हाँ, ओके। अच्छा देखो, इसके साथ साथ देखो, तुम्हारा ऑप्शन ए तो सही है, दैट इज सजेशन एज अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डजंट बिलीव इट टू बी ट्रू। और पैसिव नहीं होता है, पैसिव का मतलब होता एक्टिव है व्हिच इज होगा। नॉट एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ वहां पे आपका सेक्शन 17 में एक्टिव कंसीलमेंट दिया है। फिर है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या है? द प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैम वो होगा। यस, सी है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, बिल्कुल वो भी डिसीव भी होगा। होता है आपका। एनी यस मैम। सच थिंग विच द लॉ डिक्लेयर्स एज मिसरिप्रेजेंटेशन, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपका ए, सी और डी ही करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग आर दी ओपिनियंस ऑफ प्रोफेसर डाइसी अबाउट रूल ऑफ लॉ? देखो फिर से एक क्वेश्चन आ गया रूल ऑफ लॉ पे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है आपका मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट। नो। इट्स, मैम हाँ, क्यों? द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज ए, बी, सी। यस मैम, ऑप्शन, मतलब, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, देन बी भी हाँ करेक्ट होगा। अ पर्सन शुड सफर ओनली फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, हाँ एंड देन सी इज आल्सो करेक्ट। हाँ, बाकी ये दोनों नहीं है। यस ठीक है, मैम। 55 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोटेक्टिव सिस्टम अंडर आईटी एक्ट 2000? ठीक है, इसका देखो आंसर है आपका 2 है। The central government prescribes the information security practices and procedures for protected system. यस मैम। Protected system relates to the protection of facilities of critical information infrastructure. ठीक है, बाकी गलत है। ये आपका हो गया 55। 56 है आपका, who among the following are public servant as it has been given under section 21 of IPC? डेफिनेशन पार्ट भी जरूर देख के जाना आईपीसी का। आईपीसी का तो खैर पूरा बेयर एक्ट ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मत इग्नोर करना। ठीक है, यस तो मैम। देखते हैं पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर ऑफ डिफेंस सर्विस होते हैं, जज होता जज है भी एवरी, और होंगे, एवरी हाँ, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों नहीं है, चेयर। डी और हाँ मैम, ई। वो वाला डाउट में थी, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एक्चुअली। हाँ, तो ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। यस मैम। ना, क्वेश्चन नंबर 57। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ थेफ्ट अंडर आईपीसी? थेफ्ट डिसऑनेस्ट आपका, इंटेंशन। यस, The property should be taken out of possession of any person without that person's consent, वो भी होगा। The person having possession must be the owner. मैम इज इट नेसेसरी कि ओनर होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, Property must be movable, yes. Taking away of the property should be permanent, yes. No. तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। सो ए बी सी इज योर बेसिकली द करेक्ट, मैम ए सी डी, ए बी डी मैम। ए बी डी, यस मैम। ऑप्शन नंबर 1। यस मैम। और आपको कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 378। 378। Now, the next one, following are the generally essential elements of crime. Mainstay and actors fears are necessary. Motive isn't. Then injury is necessary, and so is human being. तो A, B, D and E. ठीक है, चलो मोटिव नहीं होता है। No मैम। 58 हो गया आपका। 59 पे आते हैं। Which of the following provisions have been inserted by IPC to Criminal Amendment Act 2002? ठीक है, तो इसमें देखो ये ऐड हुआ था, ये भी ऐड हुआ था। ठीक है, 166, 166A। हाँ, 326 ए और बी आपका एसिड अटैक से रिलेटेड है, और 166 ए बी आपका रिलेटेड है। एक तो है Law आपका something. पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन, ये आपका 166 ए। 166 बी है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। तो आपका Yes. ए बी सी डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, Okay. ऑप्शन नंबर 4। 60 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, सो इट इज अबाउट द नेग्लिजेंस। Negligence is a breach of legal duty Legal duty towards, towards the cost by omission, वो सही है।
Actionable neglect consists neglect of the use of ordinary care Yes, towards ये the भी person सही to whom ये भी सही है. There is breach of legal duty to care which results in damage. सही है. There is no difference between. No मैम वो वाला तो गलत है. तो offense of death by negligence under IPC. हाँ मैम बस first ऑप्शन ही नंबर सही है. 3 इज योर करेक्ट आंसर। Yes. सी डी और ई नहीं है। नेग्लिजेंस में बेसिकली 4 चीजें आपको देखनी होती है, ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच होता है, कॉजेशन होता है और डैमेजेस। ठीक है, Yes ma'am. चलो नेक्स्ट इज योर 61 दैट आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे एन्यूमरेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये चीज ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, तो राउंड हो गया ये चीज। देखो इंटरनेशनल, अगर आप आर्टिकल 38 पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे ऑल इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं दिया लैंग्वेज, ठीक है, वहां पे सिर्फ इतना दिया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन वेदर जनरल और स्पेशलाइज्ड ऐसे करके, नहीं वेदर जनरल और पर्टिकुलर ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट। तो आपका ऑप्शन ए इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ऑप्शन बी जो है आपका इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड एज लॉ, ये आपका करेक्ट है। द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन, ये होगा कि नहीं होगा बताओ। ये नहीं होगा, ये है, ठीक Okay है, ma'am. तो Yes ma'am. सी और ए इज योर इनकरेक्ट वन। तो सिर्फ आपका बी और डी ही बचा विच इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। Alright, चलो ये वाला समझ में आया पॉइंट, ऑल इंटरनेशनल कन्वेंशन जाके Yes एक बार ma'am. देख लेना, ठीक है, आर्टिकल 38। Alright, क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में है, ठीक है। देखो क्वासी जुडिशियल बॉडी देखते हैं क्या क्या दिया गया है। A quasi judicial body may never review its own decision if there is a grave error of law in it। क्या ऐसा हो सकता है? Ma'am, if I'm not wrong, it can review its own decisions. See, जनरली देखो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है दे कैन नॉट रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द स्टैट्यूट। Okay ma'am. हाँ, तो इसका फर्स्ट तो सही है, क्वासी जुडिशियल बॉडी में रिव्यूज ओन डिसीजन इफ देयर इज अ ग्रेव, ठीक है, ये नहीं आएगा जब तक कि स्टैट्यूट में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होगा, तब तक वो रिव्यू नहीं करेगा। उसके पास इनहेरेंट पावर होती है नहीं, ये भी गलत No है, ma'am. ठीक है, इनको क्रॉस करना। जुडिशियल बॉडी हैज पावर टू इशू रिट्स ऑफ कोर्स। मैम रीच तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है. हाँ, तो डी भी आपका गलत है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है, व्हिच इज डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डावर, डावर क्या होता है? इसको Ma'am, मेहर भी बोलते हैं, ठीक है। Mahar, yes ma'am. But ma'am, is it a consideration of surrender of a person by the wife? हाँ, it is. Basically it is a sum of money which is payable by husband to wife on marriage, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। और डावर इज द टेक्निकल, Mahar बोलते हैं इसमें. हाँ, ठीक है, और डावर मस्ट बी फिक्स्ड एट मैरिज सेरेमनी अदरवाइज मैरिज विल बी वॉइड, ये भी आपको करेक्ट है। When no dower is expressly fixed at marriage ceremony, the law confers the right to dower upon wife. No, the answer is option number 3, which is A, B, C. ABC. हाँ, सेकंड भी कौन सा क्वेश्चन था आपका? 63 है ना? Yes. No, 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 no. Just to correct, sorry गलती हो गई। ये void वाला नहीं है, ठीक है? ये आपका आंसर सही, ए, बी और डी, ठीक है, राइट। That where no dower is expressly fixed at marriage ceremony, the law confers the right of dower upon wife, ठीक है, तो आपका Oh, ए, बी, डी ही करेक्ट आंसर। yes ma'am.
64 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा हाँ ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये ड्रॉप हो गया था, ठीक है, क्योंकि ओके। इसका हाँ करेक्ट ऑप्शन का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है अगर आप देखोगे, राइट। बट फिर भी सप्तपदी के बारे में पढ़ के जरूर जाना, राइट। जी मैम। चलो सेक्शन, अरे क्वेश्चन 65 है, which of the following cases the Supreme Court has held that while applying and interpreting the anti-defection law, the Speaker of Lok Sabha functioned as a tribunal? हाँ जी, बताओ। It is this case कि हो तो हो जी लो हो हाँ। तो होलो वर्सेस जज लुइस मैम। इसमें ये बोला गया था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है स्पीकर की, it was challenged basically in this case in deciding the disqualification of MLA cases. ये तो it was कि हो तो हो लो हाँ। चलो नेक्स्ट इज, हाँ तो फिर अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन 66, यहाँ पे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है। देखो मैम यहाँ सेल पे, ऑफ वुड्स के तो सेक्शन ही याद नहीं है। हाँ तो देखो इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखो ए का 3 है, ऑप्शन सेल आपका 64 में दिया गया है, सी आपका सेक्शन 59 में दिया गया है, और ये आपका 28 में दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये 67 आपका फिर से वही आ गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आपका यूएस में, रेसिड्यूरी पावर्स, इंडिया। हाँ Unlimited powers of parliament, if I'm not wrong, एक it's मिनट एक मिनट, सॉरी एक सेकंड, इट्स, हाँ सॉरी, लिमिटेड पावर्स टू द पार्लियामेंट में यूएस कह रही हूँ, इट्स इंडिया सॉरी, ठीक है। लिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिया की है, अनलिमिटेड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट यूके का है, UK। ठीक है। बाकी जो आपका रेसिड्यूरी पावर है वो रहा आपका, Yeah। हाँ इट्स यूएस, US। और Constitutional Council is of France। बचा आपका फ्रांस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। हाँ तो नेक्स्ट वन, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और ये ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अगर ईयर पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। मैम ICCPR शायद से था 19, इफ याद तो नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट 68 या 79, यस मैम 79 था। ठीक है, ठीक है। और ये देखो ICERD इज 1968 है, पोस्ट रिवर कन्वेंशन है आपका 54 का, और CRC है आपका, अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट, अरे 3 इज योर करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, काफी सिंपल है, देखो इसके लिए भी आपको बेयर एक्ट पढ़ के जाना, कॉन्स्टिट्यूशन का है कि कौन कौन से पार्ट में कौन सी चीजें दी गई हैं, ठीक है। सो पार्ट 9 भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, राइट। और पार्ट 8 इज ये ऑफिशियल आपका लैंग्वेज। ट्रिब्यूनल्स दिया गया है, पार्ट 8 इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हाँ। ये आपका देखो पार्ट 8 है, ये आपका यूनियन टेरिटरीज है, यस मैम, सॉरी मैम, यस मैम। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 69 हो गया, 70 पे आते हैं, ये भी देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें भी देखो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, राइट। देखो रोज एंड फ्रैंक वाला जो केस है ये आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस से रिलेटेड है, ठीक है। और हैरिस वर्सेस निकर्सन ये आपका इन्विटेशन टू ऑफर है। पावल वर्सेस ली देखो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, इट वाज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो जो स्कूल का हेड मास्टर वाला पोस्ट था ये वाला। और है आपका ओली वर्सेस मार्लबोरो कोड, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ आपका, ए का 2, बी का 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो इन सब क्वेश्चंस में क्या है, अगर आप एक भी कॉम्बिनेशन अगर आपको आ रहा है तो आप
उसके बेसिस पे बाकी कॉम्बिनेशन भी आप सेट कर सकते Yes, हो। यू ma'am. गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो आपने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है, रोज एंड फ्रैंक आपने पढ़ा है या पावल वर्सेस ली पढ़ा है, आप ये कॉम्बिनेशन बना लो, फिर बाकी आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. 71 देखो, अगेन वी हैव गॉट मैच ऑफ द फॉलोइंग। ये लेकिन आपका क्वेश्चन Registration. ड्रॉप हुआ था। Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये भी ड्रॉप था क्योंकि इनके पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। चलो 72 पे आते हैं। राइट, 72 का देखो, हॉफेल तो आपको पता ही है। Customs is historical school. एरिस्टोटल का था कॉर्पोरेशन सोल ये देखो पोस्ट ना, ए का मार्केट। कॉम्बिनेशन बन गया, ए का 3 बन गया यस मैम। और डी का बन गया कोऑपरेटिव 2। कॉर्पोरेशन को 2। यस मैम, रूरल को रिलेशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस मैम। बात खत्म, आपको एक एक लेके मैच नहीं करना। ऑप्शन ओके नंबर मैम। 2 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये भी देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और देखो ये रीसेंट केस लॉ से रिलेटेड है। ये एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तो आपको पता ही होगा किससे रिलेटेड है। ठीक है, इट वाज रिलेटेड टू द अबॉर्शन। ऑलराइट, तो कुछ रीसेंट केसेस भी आप लोग देख के जाएंगे। ठीक है, तो ए का 2 हो गया, बी का 4 है, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड था। सहारा इंडिया रियल एस्टेट, ये आपका था ये आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ पब्लिकेशन से रिलेटेड था। और एनसीटी ऑफ दिल्ली है आपका फेडरल। तो देखो यहाँ पे अगर आपको ये वाला भी पता है, एक भी पता होगा ना, तो आप बाकी आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिसेंट जो लीडिंग जजमेंट्स आए हैं वो भी आप लोग पढ़ के जाओ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, तो आपको बेसिकली जो एक्ट है उसके पर्टिकुलर ईयर से मैच करनी है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन तो मैम 1689 का है। यूएसए, यूएसए का ये है दिखाना 1787। मैम देन यूके बिल ऑफ राइट्स इज 72। प्रोबेबली देखो 1689। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन दिस ऑप्शन नंबर 2। तो देखो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का है, इट्स 1867। बी का 4 है, 1900 ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, सी का 1 है, बता दिया था। यूके का है आपका 3 है, 1689। ठीक है, तो अगर आपको यूके का भी पता है तो पूरा यस मैम। बाकी आइडेंटिफाई कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है आपका। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर एट, बहुत ही हेल्पफुल होगा इसमें। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या आता है? कंडक्ट, हाँ, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटीज है कि डीपीएसपी है? ड्यूटीज। ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। सॉरी मैम। व्हाट इज आर्टिकल 51, क्या है बताओ? बेटा 51 ए डायरेक्टिव है ना प्रिंसिपल। आपका, यस। फंडामेंटल यस ड्यूटीज। मैम। यस मैम, सॉरी मैम। यस मैम। तो यस मैम। डीपीएसपी हुआ ना, यस मैम, डीपीएस। तो बताओ। ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज है, ठीक है, इसमें मत गलती करना। यस मैम। ठीक यस है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये है आपका 2 ही है। ठीक मैम। है, 27 हाँ, मैम, सेकंड। यस मैम। कौन सा मैम? सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स 77 कंडक्ट मैम। ऑफ बिजनेस आपका 77 में है। ये है आपका स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, और लैंग्वेज है आपका 210। तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज और डीपीएसपी पता ही होता है जनरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। 76 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सुरेश कुमार कौशल कब हुआ था?
2013 का केस है। नवतेज सिंह जौहर 2018, यही केस है जो 377 का था, और तुम कंफ्यूज हो गई थी, जोसेफ शाइन नहीं लगा। ठीक यस है। मैम, कंफ्यूज हो नाज गई। फाउंडेशन है 2009। ठीक है। और अंकित वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये तो रिसेंट केस है, ये भी इमेज राइट से रिलेटेड है। ठीक है। तो अब क्रोनोलॉजी अब आप देख लीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। मैम ऑप्शन 3। यस, CABD। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग। Arrange the following cases in chronological order where death sentence has been awarded by the Supreme Court of India. चलिए, ये भी क्रोनोलॉजी आपका आ गया। क्रोनोलॉजी पे भी बहुत ध्यान देना है। देखो, एडिगा अनम्मा आपका 1974 का है। देखो जनरली देखो स्टूडेंट्स को क्या पता होता है, एडिगा अनम्मा हो सकता है बहुत ही कम लोगों को पता हो, लेकिन बच्चन सिंह और माची सिंह जरूर माची पता सिंह, होगा। इवन शबनम खान वाला भी मैम पता है। हाँ, शबनम खान भी पता होता है। देखो, बच्चन सिंह और माची सिंह दोनों एक ही साल आए थे, लेकिन पहले बच्चन सिंह आए थे। ठीक है। 1983 में दोनों ही केस आए थे, लेकिन पहले बच्चन सिंह आया था। फिर विनय शर्मा आपका है 2020 का केस है ये। शबनम खान है तुम्हारा कौन से साल का है? मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 2012 और समथिंग, बट 2020 तक 15। चला था मैम, इसमें 2015। या ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका क्या आंसर होगा, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो इट विल बी ABCED। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ओके, इसको क्लियर कर दो। गॉट गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Which of the following, which among the following most appropriately reflects the constitutional system for India and US? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल होता है, यस मैम। रेसिडेंशियल नहीं है। एंड ठीक है। नो मैम, इट्स इंडिया का नॉट रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री होता है। ठीक है। यस मैम। ठीक है। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फॉर्म फॉर्म ऑफ ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड है। रूल ऑफ लॉ। यस, वेरी गुड, इट्स ACE। ठीक है। चलो 79 है आपका, अरेंज द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ IPC ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। बताओ, फिर से आ गया क्रोनोलॉजी। ठीक है। फर्स्ट जनरल एक्सेप्शंस, देन ऑफेंसेस अगेंस्ट हाँ, स्टेट। पहले बताओ जनरल एक्सेप्शंस कौन से चैप्टर में? मैम चैप्टर चैप्टर 4 4। में। ठीक है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आपका चैप्टर 8 में आ। ठीक है। फिर आपका बचा प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी आपका आता है, इट्स 17। ओहो, सॉरी, इट्स 17। आई होप इट सीम्स टू बी 17। नो मैम, ओके। इट्स यहाँ मैम पता चल रहा है। ह्यूमन बॉडी आपका आता है, व्हाट इज दिस, इट इज 16। और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट आपका हो गया चैप्टर 6। ठीक है। तो क्या क्या क्रोनोलॉजी बनी? फर्स्ट जनरल एक्सेप्शंस ए ई, देन यस। बी, हाँ, देन डी एंड सी। यस, सो इट इज ऑप्शन नंबर 3। चलो स्मूथ again, एक मिनट क्लियर कर दो इसको। चलो 80, अरेंज द फॉलोइंग। ये भी देखो क्रोनोलॉजी बेस्ड है। सीरियसली दैट इज व्हाई यू नो कि ये जो एग्जाम हो गया है UGC का, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग हो गया, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आर क्रोनोलॉजी। ठीक है। पहले ये लोग स्टेटमेंट वाले में दिए थे जो प्रीवियस वाला था अटेम्प्ट, बट चलो ठीक है। जस्ट ऑल्सो राइट इट ओवर हियर। अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, ये आपका सेक्शन 29 25। में दिया गया। 29, सॉरी मैम।
ये देखो ये सबको पता होता है अनसर्टेनिटी वाला, ठीक है, जो वॉइड अग्रीमेंट्स होता है। हो सकता है लोगों को एकदम पर्टिकुलर और परफेक्ट सेक्शन ये पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 मिनट, ठीक है। तो अग्रीमेंट पॉइंट फॉर अनसर्टेनिटी ये हो गया आपका सेक्शन 29। अब देखो ये जो बाकी सेक्शन है ये को श्योरिटी से रिलेटेड हुए। को श्योरिटीज किसका कंसेप्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, गारंटीज, यस मैम। ठीक है, जो कि सेक्शन 126 से स्टार्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स वहां पे भी आपको ये देखो बेयर एक्ट रीडिंग वाला एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में सारी चीजें दी गई है। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर ये आपका सेक्शन 134 में दिया गया है। रिलीज ऑफ वन कोर्स श्योरिटी, ठीक है, ये आपका सेक्शन 138 में दिया गया है। कोर्स श्योरिटी इज लाइबल ये आपका 146 में दिया गया है। आई मीन कोर्स श्योरिटी इज लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट ये आपका 146 में दिया गया है। एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ये आपका दिया गया है 140। सो अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर है व्हाट इज दैट, ए बी सी ई डी, ठीक है। अब आप देख लो आपको कैसे पढ़ाई करनी होगी इसके लिए। बेयर एक्ट, यस और नो, यस मैम, ठीक है। इंडेक्स पूरा याद करना हाँ पड़ेगा। इंडेक्स। अब देखो इस बार तो इन लोगों ने ये पूछ लिया है कोर श्योरिटीज, अब मुझे नहीं लगता कि आपके अपकमिंग अटेम्प्ट में पूछेंगे, ठीक है। बट आप बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इन द सेंस आप बेसिक जानिए उनका थीम क्या होता है और उनका क्रोनोलॉजी देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही ये लोग पूछते हैं। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है आपको, बेयर एक्ट बार बार देखना है, रिवाइज करते रहो जितनी बार हो सकता है, ठीक है। यस राइट, मैम। एटलीस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ कौन सी चीजें पहले आ रही कौन सी चीजें बाद में आती हैं, राइट। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप एक एक सेक्शन बैठ के याद करो, ठीक है, क्योंकि देखो कभी कभार ही ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो आप तो कभी बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उस पर मैक्सिमम ध्यान दीजिए, तो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज योर 81 पे आते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ, अभी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ये भी आपका कैसा है, इट इज योर बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आपका सेक्शन 22 में दिया गया है। पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट ये आपका दिया गया है 451 में। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज ये आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है सेक्शन 394 में। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप ये भी दिया गया है आपका 272 में। और फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी दिया गया है 205। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं कवर्ड है कंपनीज एक्ट के, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें छोड़ के हम लोग कंपनीज एक्ट का चलो बेयर एक्ट सारा चीज रट्टा मार, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी मैंने पढ़ाया है आपको क्लास या जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है आप उसी में ही लिमिटेड रखिए। 2-4 क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ द सिलेबस, हो सकता है आपको लगे कि हाँ आया है, राइट। अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर गेस। आप 3-4 क्वेश्चन के लिए आप बाकी 90-95 क्वेश्चन आप स्टेक पे नहीं लगा सकते। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, व्हाट इज माई इंटेंशन है, यस मैम। ठीक है। सो इसका देखो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। Next is your 82. Consider the following cases again the chronology. Decided by Supreme Court from old to new. देखो ये कितना ये लोग अपने ही पेपर में ये लोग वापस से क्वेश्चन मतलब रिपीट करते हैं केसेस। हमने देखो ऊपर रूल ऑफ लॉ भी देखा,
इवन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट वाला जो भी था आपका 2013 वाला, वो भी रिपीटेड था, मतलब रिपीटेड इन द सेंस 2 क्वेश्चन कवर हो गए थे उसमें। नहीं, नहीं, नॉट दैट, सॉरी, 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, उसके भी 2 क्वेश्चन थे। यस और नो? मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, हैंग हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि यूजीसी वाले अपनी कंटेंट को रिपीट करते हैं। अब देखो, ये वापस से नवतेज सिंह जौहर वाला केस आ गया, और जहाँ पे भी हमें क्रोनोलॉजी सेट करनी, मैं ये कह रही थी कि अपनी ही पेपर में ये लोग एक ही टॉपिक को वापस से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, 101st अमेंडमेंट भी इन्होंने रिपीट कर दिया था, 2 क्वेश्चन थे मैम 101st अमेंडमेंट पे, आपको याद होगा तो। यस मैम। रूल ऑफ लॉ पे भी 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं हम लोग नवतेज पे। नवतेज आपका कब आया था बताओ, इसको याद हो गया होगा। 2018 में आया। 2018। ठीक है, रूपा अशोक हुर्रा आपका कब आया था? ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट केस है, फैमिली लॉ का है, नॉट रॉन्ग। ये आपका आया था 2002 में, फैमिली लॉ का केस है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। रूपा अशोक हुर्रा, शायरा बानो, ये सब। शायरा बानो ये कब आया था, ये भी आपको पता होगा, कब आया था? 2017 या 20 यस, समथिंग। 17 से। यस मैम। सेल्वी, मैम सेल्वी का ये याद आपको ही नहीं नहीं भी अभी। पता हो तो कोई बात नहीं, जैसे ये 2010 में आया था। लेकिन देखो यहाँ पे नवतेज, रूपा, शायरा और शंकरी प्रसाद आपको पता हो, ये कब आया था? 1951। यस, वेरी गुड, ट्राइंग टू राइट इट 1951। अब आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी सेट कर लीजिए। ठीक है, क्या होगी क्रोनोलॉजी? E ओल्ड टू then न्यू कर। हाँ, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ई, E then B ई, बी, डी, D सी, ए। uh, yes ma'am C है। इट्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, now next is 83। my god, again a chronology। ओके, चलो फिर से देखते हैं। अच्छा हाँ, वन थिंग, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। ठीक है, सही ऑप्शन नहीं दिया होगा इन्होंने, सो इट वाज ड्रॉप्ड। ये ड्रॉप था। ठीक है, या रिलीज, अगर मान लो, देखो ड्रॉप में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है ना, तो आपको चाहे सही अटेम्प्ट किया हो या गलत अटेम्प्ट किया हो, आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यूजीसी का तो ये रहता ही है कि मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इनके ड्रॉप होने ही होने। मैम ठीक है, ड्रॉप होने से फुल मार्क्स मिलता है? हाँ, आप ओके अटेम्प्ट किए हो लेकिन, ओके मैम। आई मीन एंड अटेम्प्ट एंड अपीयर्ड इन द एग्जाम, ऐसा कुछ है इनका प्रोविजन। हाँ ओके मैम। यस, और वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सब लोग सारा मार्क करके आते हैं, और करना भी चाहिए यस मैम। ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 83 इज ड्रॉप्ड, कैंसिल कर देते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट इज योर 84, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टेकिंग प्लेस। हाँ जी बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। मैम फर्स्ट तो इंटेंशन होगा, फिर प्रिपरेशन, देन एक्ट, देन कन्विक्शन एंड सेंटेंस। ये उसी ऑर्डर में ही दिया है, यस ए बी सी डी। यस ठीक है, मैम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 85, माय गॉड, अगेन अ क्रोनोलॉजी। अब बताते मैम हैं। क्रोनोलॉजी इतना क्यों देते हैं, कौन कितना रट्टा मारेगा। टैलेंट होता है, इसीलिए कह रही था कि एक दो अगर आपको पता होगा ना, तो आप कर लोगे, सॉरी। ठीक है, आपको पता होगा तो आप कर लोगे। ये सज्जन सिंह आपका कब आया था? 65 में आया था ना। यस मैम। की हो तो होला, हाँ, की हो तो होलो हॉन, ये आया था आपका 92 में आया था। ये देखो, की हो तो का भी रिपीटेड है। हाँ मैम। एल चंद्रा आपका आया था 97 में। मिनर्वा मिल्स आपको पता ही होगा, देखो ये सब बेसिक चीजें, सब लैंडमार्क चीजें, तो ये तो आपको पता हो। अब इसमें आपको 2 4 भी पता है ना, 2 ही अगर आपको मान लो पता है ना, तो यू विल इजिली क्रैक द करेक्ट आंसर। मिनर्वा आपका 80 में आया था,
और अजीज बादशाह, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये आपका 1967 में है। 1967। तो अब आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इट इज बेसिकली ए ई, क्या हुआ, हाँ, ए ई डी बी सी। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। Yes, ma'am. Next, possession is said to be the 9 points of law. Is it true? Yes, it is true. Yes, ma'am, it's true. The person in possession of an object has better claim over it against the whole world except the real owner. Ma'am, that's also true. And it is a correct explanation. Option Yes, number ma'am. 1 is the correct answer. Yes. Next आते हैं हम लोग जल्दी से, फिर से assertion reason आ गया. The Supreme Court has opined that doctrine of stare decisis is one of the important principles of precedent. इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दो. इसका मतलब ये होता है कि that court will adhere to precedent in making their Precedence. decision. ठीक है. And अब देखते हैं reason क्या है. If the Supreme Court finds it's unable to accept the earlier view, it can decide the case in a different way. So both are correct, but But R is not not the correct correct explanation. explanation. क्योंकि ये तो प्रेसिडेंट के ही बारे में बात कर रहे हैं. Yes, ma'am. मतलब लाइक जो प्रेसिडेंट होगा वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना व्यू बनाएगा. बट ये तो जस्ट ऑपोजिट है जो रीजन दिया गया है. सो हेंस आर इज नॉट द करेक्ट. 88 है आपका, बाइगैमस मैरिज इज वॉइडेबल अंडर हिंदू लॉ. इज इट? इज इट Ma'am, वॉइडेबल और वॉइड? void होगा ना? हाँ, इट इज वॉइड. कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 11 में. 11, yes, ma'am. And it has to be read together with section 17 of Hindu marriage act. Now, Yes. child born out of void marriages are legitimate children of their parents. Is it Ma'am, true? this is, I guess this is correct. Yes, ma'am, this is Yes. correct. Section Void 16. and voidable marriages से बच्चे जो होते हैं वो legitimate है. Yes, ma'am. हाँ, तो आपका accordingly option number 4 is the correct answer. ठीक है. अब आते हैं 89 पे. Law has its source in its general consciousness, woke gist of the people. ठीक है. woke gist किससे दिया था? Savigny? हाँ. Statement 2 है आपका, law is a product of people's life. It is a manifestation of its spirit. हाँ जी. Both are बोथ correct. करेक्ट. Yes, बोथ ma'am. करेक्ट. क्योंकि वोक जस्ट का वही पार्ट है, मतलब लाइक एक्सप्लेनेशन यही है उसका. ठीक है. अब आते हैं 90 पे. Salmon says that common law is essentially a judge-made law. ठीक है. Yes, ma'am. And Poloff said that a common law is a customary law that is based on custom. मैम फर्स्ट वाला तो सही भी लग रहा है, सेकंड वाला मैं डाउट दूसरा भी में. सही है. यस मैम. चलो अब नेक्स्ट आते हैं आपका. अब देखो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. कॉम्प्रीहेंशन का मुझे इतना इनका अच्छा पॉइंट लगाना कि पहले तो ये लोग दिमाग लगाने वाला पूछते थे. ठीक है, कि लाइक जजमेंट का एक प्रेसिडेंट दे दिया और उसमें से आपको लाइक उसमें आंसर नहीं रहता था, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता था कि किसने जजमेंट पास की है, किसने डिसेंटिंग जजमेंट पास की है, या Yes, क्या ma'am. हुआ था उस केस में. अब तो ये लोग कॉम्प्रीहेंशन बना दिए. तो It आप becomes easier. Yes, ma'am. एग्जैक्टली आपके 10 मार्क्स सोचो कितने आपको इजीली मिल सकते हैं. 10 मार्क्स, कैन यू इमेजिन? Yes, ma'am. सही. ठीक है. तो देखो ऑफ कोर्स ये फ्रॉम 91 to 100 यू हैव टू रीड द कॉम्प्रीहेंशन. ठीक है. Mhm. फिर भी मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो देखो 91 का क्वेश्चन क्या है. अमेरिकन्स हैज टू स्ट्रगल वेरी हार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ सिविल वॉर टू एस्टैब्लिश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है.
यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये चीज, ठीक है, ये आंसर है। अमेरिकन हैड टू वेज अ वॉर, सिविल वॉर टू एस्टैब्लिश, ठीक है। Aggression was हाँ, indestructible. यस, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 92 है आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको यहीं पे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। दे आर द डिफरेंट कंसेप्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 93 है आपका like union the states are endowed with sovereign power, this sovereign power of state is sovereign power of state is determined by the constitution। Determined by the constitution. हाँ, ये आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है आपका 94 है। 94 है आपका what did the drafting committee want to make it clear at the outset, ठीक है। So it is basically the states have no right of succession, ये आपको यहाँ पे कहीं दिया था, again same para, have no right of succession, ठीक है। So it's very easy to qualify these questions, I mean to solve these questions. And Article 1 of the Constitution of India uses the phrase this is through its federation. So the correct phraseology need not to be federation of states, because यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी phraseology कहाँ पे दिया था, ठीक है, यहाँ पे है ये, ठीक है। सो ये आप आइडेंटिफाई कर लेना एंड अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही Okay. सिंपल कर दिया है। 96 का अभी चलो देखते हैं। 96 से हम लोग का दूसरा शुरू हो रहा है। इट इज रिलेटेड टू दी आईपीसी, ठीक है, मतलब Yes, लाइक इट ma'am. इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ, राइट। एंड बहुत ही ऐसा रैंडम सा इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है जिसका फर्स्ट आंसर आपको यही मिल जाएगा। Totally कितने passages आ रहे हैं? देयर आर 2 पैसेजेस Okay, ma'am. divided into 2 parts, मतलब एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पैसेज में भी 5 क्वेश्चन है, Okay, टोटलिंग ma'am. 10 क्वेश्चन। Yes, ma'am. हाँ, 10 क्या 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। नाउ द स्टिंग ऑपरेशन रेजेस, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट विल बी मोरल, एथिकल एज वेल एज लीगल क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। Yes, ma'am. एंड हाँ, नेक्स्ट है आपका 97 है। A sting operation, though designed to catch a criminal, is questionable because option number 4 is the correct answer, ठीक है। वो आप पढ़ोगे पैराग्राफ, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 98, that the legal status of sting operation in US and India is, ये तो मैम है ये तो नॉट सेम होगा लग रहा नॉट है। सेम है, हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो सामने Yes, दिया ma'am. हुआ है, वो पढ़ने पे तो आ ही जाएगा। 99 है आपका, द डिसीजन ऑफ आर.के. आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट इज एप्लीकेबल, it is applicable, it is not as acceptable principle in all cases, ये आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। हाँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है इस क्वेश्चन के लिए, तो समझ में आ जाए। लास्ट इज योर 100 क्वेश्चन, वेयर इट इज अ पर्सन हु डज अ स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली ऑप्शन नंबर 4, और यही इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दैट एट द सेम टाइम क्रिमिनल इंटेंट बिहाइंड द कमीशन ऑफ दैट विल हैव द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सारे एक्ट हो सकते हैं फॉर स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो जी मैम। हाँ, तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो दिस इज इट, दिस इज all about your March 2023 question paper.